Welcome to my channel. Today the topic that we are going to study is significant figures. The number of accurately known digits and the first doubtful figure. Note, significant figure accounts where measurements are involved rather than exact values, since measurements are uncertain up to some extent. अच्छा, आपका ये नोट जो है द फर्स्ट डाउटफुल फिगर वाले सेक्शन से एसोसिएटेड है. इट सेज कि जहाँ जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं, मतलब उनकी रीडिंग में जितने भी डिजिट्स होते हैं, यू आर सर्टेन अबाउट देम कि स्टार्ट टू एंड इसमें कोई एजम्पशन नहीं है, इसको एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं. और जो मेजरमेंट्स होती हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट से की जाती हैं, हर इंस्ट्रूमेंट की चूँकि लीस्ट काउंट होती है, देयरफॉर कुछ एजम्पशंस करनी पड़ती हैं रीडिंग में. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल समझाऊं तो एक स्केल जो होता है सेंटीमीटर का रेगुलर स्केल, अगर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के क्वार्टर में या हाफ क्वार्टर में आपके ऑब्जेक्ट का एंड पॉइंट लाई करे, तो यू हैव टू मेक एन अजम्पशन कि यार शायद 5.2 या 5.25 या 5.235 इस तरह आपकी लेंथ होती है. तो आपने चूँकि ये एजम्पशन में बनाई है, खुद एज्यूम किया है, ये आपकी किसी मार्क पर लाई नहीं कर रहा था वो ऑब्जेक्ट. देयरफॉर यहाँ पर डाउटफुलनेस क्रिएट होती है और इसी से एसोसिएटेड ये एक एक्सपेरिमेंट भी है. सो दिस इज़ द डेटा ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट आई हैव एज्यूम्ड माई सेल्फ. Note that in these readings there is no unit because we are concerned with significant figures that have nothing to do with the units. So just focus on this data. So let us assume that these three readings have been taken by three different people. So reading number 1 is 32.61, reading number 2 is 32.63, and reading number 3 is 32.64. You can notice that 32.6 is consistent in all these three readings, but the second decimal place figure, जो second decimal place पर figure है वो inconsistent है, which is 1, 3 and 4. चूँकि यहाँ पर ये inconsistent इसलिए है क्योंकि यहाँ पर assumption की गई है, तो that's why ये inconsistent है, इसको doubtful कहते हैं. अब चूँकि ये तीन जो डिजिट्स थे ये कंसिस्टेंट थे, इसीलिए इनको एक्यूरेटली नोन फिगर्स कहते हैं. एक्यूरेटली नोन फिगर्स इस डेटा में कौन से हैं? 32.6. वो डाउटफुल कौन से हैं? 1, 3 and 4. तो आपको अब डेफिनेशन की समझ आ रही है, द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर. तो आपको डेफिनेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये क्या है. अब इन रीडिंग्स में टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से डिजिट्स हैं, कौन से नहीं हैं, you will understand when you will go through their rules. General rules को पढ़ने के बाद ही आपको समझ आएगी. So move on to general rules for significant figures. Rule number 1 says all non-zero digits 1 to 9 are significant. From 1 to 9, all these 9 digits are significant. For example, in 3, 5, 6, 2, there are 4 significant digits. Point number 2, in case of scientific notation, figures other than the power of 10 are significant. For example, in 5.4 multiplied by 10 power 7 मीटर, इस रीडिंग में पावर ऑफ 10 को एलिमिनेट करके जो बाकी हिस्सा रह जाता है वो सिग्निफिकेंट है, यानी 5.4, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. साइंटिफिक नोटेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट. सो 8.07 इंटू 10 टू पावर -4 ग्राम्स, इस रीडिंग में पावर ऑफ 10 को छोड़ के 8.07 सिग्निफिकेंट है. सो ज़ीरो केस, ज़ीरो इज़ अ स्पेशल केस. इट हैज़ 3 सब पार्ट्स. सो पार्ट नंबर ए, zeros between two significant figures is significant. It says if 0 lies between two significant, if 0 lies between two non-zero digits, 0 is considered as significant. Either if it is a decimal fraction or a non-decimal fraction, 0 is significant if it lies between two non-zero digits. So in 304 or in 3.09, there are 3 significant figures. Part B, zeros to the left of significant figures are not significant. For example, in 00304 and 0.39, there are
3 significant digits in this and 2 significant digits in this example, because zeros to the left of non-zero digits are not significant. Part C. Zeros to the right of significant figures may or may not be significant. In case of decimal fractions, now in case of decimal fractions, zeros are significant. In 8.300 or in 7.590, there are 4 significant figures, because zeros to the right of significant figures are significant in case of decimal fractions. But in case of integers, there are further 2 subparts. Zeros are significant if least count is mentioned, and zeros are not significant if least count is not mentioned. For example, zeros significant तब होंगे इंटीजर्स में, यानी होल नंबर में रीडिंग हो जिसमें डेसिमल ना होता हो जिस रीडिंग में, उस केस में ज़ीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगे? जब हमें लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट की जिससे रीडिंग की गई है वो मैंशनड हो. फॉर एग्जांपल इस केस में लीस्ट काउंट मैंशनड है 1 मिलीमीटर, देयरफॉर 45,000 मिलीमीटर में ज़ीरोस सिग्निफिकेंट हैं, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं. पार्ट बी में चूँकि रीडिंग सेम है बट लीस्ट काउंट मेंशन नहीं है, देयरफॉर जीरोज नॉन सिग्निफिकेंट हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, दैट इज़ 4 and 5. सो इसमें फर्दर लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड करती है हमारी रीडिंग, वो चूँकि हायर लेवल पे आ जाएगा. इस वक्त मैं क्लास 9 के कोर्स को फोकस कर रहा हूँ, देयरफॉर इट इज़ सफिशेंट फॉर यू गाइज. सो फर्दर मैं इसको क्लास 11 के कोर्स के साथ रिवाइज भी करूँगा, तो आई गेस दिस इज़ सफिशेंट. If you still have any query about it, you can comment down in the section, so I will resolve the query in the next video. Thank you.